गुड इवनिंग टू ऑल। सो आज हम हमारा फर्स्ट मॉक इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। जो हमारा मॉक इंटरव्यू रहेगा वो बेसिकली स्टार्टिंग के चैप्टर से ही रहेगा। जैसे जावा इंट्रोडक्शन फर्स्ट चैप्टर आ जाएगा, सेकंड चैप्टर हमारा आ जाएगा जावा बेसिक्स, जैसे ऑपरेटर्स वगैरह कीवर्ड से रिलेटेड हम लोग पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। देन थर्ड हमारा आ जाएगा ऊप्स कॉन्सेप्ट। सो हमारा जो इंटरव्यू रहने वाला आज वो बेसिकली ये तीन चार चैप्टर्स के बेसिस पर ही रहेगा। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा मॉक इंटरव्यू। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिया से। सो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा, दैट इज कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन इन जावा। Yes, sir. First, compilation execution. When we create the .java file, we have the .java file. So .java file with the help of Java C compiler, we will compile that. Like we will check whether there is a syntax error. If there is a syntax error, it'll throw the compilation error. If there is no syntax error, then it'll go to the, it'll convert to the dot class file, like you can say as bytecode as well. So it will go to the JVM will check the bytecode, with the help of bytecode verifier, it will check and it will convert to the machine code. So then it will execute. So this is called compilation and the execution. Okay, good. This I will explain after some time also, whole process. Okay. Okay, fine. Yeah. Then next question, Ashish. What are the different types of memory areas present in JVM? Yes, sir. So there are like around five different memory areas in JVM, Okay. starting with class area, which is also called as method area. Another Okay. one is heap area. Okay. The next one is stack area, and another one is PC register, and one more area is native area where the native methods are there. And Okay. so starting off with method area, do I need to explain the like memory allocation of those areas as well? Like, Yeah. Yeah. yeah, sure. Okay. So the starting off with class or method area, we have like basically whenever the class loader is loading the dot class file and its metadata into the memory area. So class area is something where the actual data definition of the dot class file is getting stored. And also we Okay. are storing the static variables, static members, all those things are like allocated in the method area or class area. Okay. Going on to the heap area, we have like all the objects, array objects, string objects, like whatever objects are there, we are storing it in the heap area. Again, like instance variables occupies memory in the heap area only. Okay. Stack area has all the current running methods actually, like starting off with the JVM, like whenever the main method is called, and main method like depends what methods are called from the main method. So all the stack ups like are there in the stack area, including the local variables as well in the stack area. Okay. And PC register is something like it basically like the basic function of this memory area is to like count the number of methods which is getting like called every time, every now and then. And when it comes to the native area is like basically all the third party methods which are like programmed in other languages such as C, C++ are stored in there. Okay. Okay. Good. Good. Sandeep. Yes, sir. Yeah. Please explain the difference between source code, bytecode, and machine code, and when they are generated. Firstly, sir, good evening. Yeah. Good So, evening. sir, source code is the code that we write in a program like a human readable code, which can Okay. human read. Now, bytecode. Bytecode is a intermediate system dependent independent code which are converted via JVM compiler. And lastly, the machine code. Machine code is the code that is only understand by the GPU of the machine, so that it can finally execute our program. Okay. Who generates the bytecode and machine code? Sir, bytecode is generated by compiler Okay. and machine code is generated by the execution engine that is present in the JVM in JIT compiler or interpreter. Okay. Good. Yeah. Let me explain these all questions. Okay. अभी हमारे first 4 questions हुए हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों को ये कुछ questions explain कर देता हूँ। सबसे पहले तो आप यहाँ देखो देखो सबसे पहला क्वेश्चन था मेरा कि कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन फेस क्या होता है। तो यहाँ मैं आप लोगों को थोड़ा सा डीपली बता देता हूँ। देखो ये हमारे पास एक सिंपल जावा प्रोग्राम रहेगा। दिस इज जावा प्रोग्राम। अब अगर मैं सिंपल जावा प्रोग्राम की बात करता हूं तो इसे हम बोलते हैं दैट इज एक्चुअली दिस इज एक्चुअली द सोर्स कोड।
डेट मीन्स के सोर्स कोड हम उसे बोलते हैं जो प्रोग्रामर क्रिएट करता है। सो प्रोग्रामर ने यहाँ पर सोर्स कोड क्रिएट कर दिया, डेट मीन्स के प्रोग्रामर ने यहाँ पर एक सिंपल जावा का प्रोग्राम क्रिएट कर दिया। देन प्रोग्रामर क्या काम करेगा, प्रोग्राम को कंपाइल करेगा किस कमांड के थ्रू, दैट इज जावा सी स्पेस फाइल का नेम, जो भी हमारे पास फाइल का नेम रहेगा, फाइल नेम डॉट जावा। सो ये हमारे पास क्या हो जाता है, दिस इज कंपाइलेशन। यहां से हमारा कंपाइलेशन फेस स्टार्ट होता है। सो ठीक है, हमारा प्रोग्राम कंपाइल होना स्टार्ट हुआ, और कंपाइल वो सक्सेसफुली कब हो पाएगा, जब हमारा सारा का सारा सिंटेक्स करेक्ट है। अगर सिंटेक्स के अंदर कहीं कोई भी एरर है तो हमारी डॉट क्लास फाइल जनरेट नहीं होगी। सो नेक्स्ट हमारे पास जो फाइल जनरेट होती है दैट इज डॉट क्लास फाइल। सो मैंने क्या बताया कि अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई भी एरर नहीं है, हमारा सोर्स कोड टोटली करेक्ट है, तो जावा कंपाइलर सक्सेसफुली डॉट क्लास फाइल जनरेट कर देगा। और इस डॉट क्लास फाइल को हम लोग क्या बोलेंगे, इस डॉट क्लास फाइल को हम क्या बोलेंगे, दैट इज बाइट कोड। यस या नो? Yes, ओके, sir. अब ये हमारे पास बाइट कोड आ चुका है। एक्चुअल में क्या रहेगा, ये जो बाइट कोड है दिस इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। एक और यहाँ पर इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है। सो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि जो हमारा बाइट कोड है जो कंपाइलर ने जनरेट किया है, मैं इस बाइट कोड को किसी भी सिस्टम पर ले जाकर एग्जीक्यूट कर सकता हूं, वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। दैट इज नॉन एज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी। तो जावा जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, तो ये पार्ट आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। अब एक और मेरे पास क्वेश्चन था, इंटरव्यू क्वेश्चन था कि व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ जेवीएम। जेवीएम के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, हाँ जी, क्या कौन कौन से हैं बताओगे जरा। Class सबसे फर्स्ट पहले loader, वन तो इज, loader, क्लास लोडर। बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट वन इज दैट इज क्लास लोडर। और क्लास लोडर के साथ साथ आप बाइट यहाँ पर कोड, एक चीज और बोल bytecode सकते हो, verifier, दैट इज, बाइट कोड bytecode bytecode वेरीफायर। verifier. verifier. बिल्कुल ठीक है, दैट इज बाइट कोड वेरीफायर। ओके, सो ये था हमारे पास फर्स्ट कंपोनेंट। देन सेकंड कंपोनेंट क्या आ जाएंगे, मेमोरी Memory Memory एरिया। areas. areas. बिल्कुल ठीक है, दैट इज मेमोरी एरियाज। और मेमोरी एरियाज वैसे तो हमारे पास 5 टाइप्स के होते हैं, बट मेजरली हम बात करते हैं तो हमारे पास Cla- 3 मेन पार्ट आएंगे। कौन कौन से, एरिया, हीप Heap, एरिया, Method क्लास area, method. क्लास एरिया या Meth- मेथड एरिया। सबसे पहले पीसी, हम यहाँ पर बोलेंगे दैट इज method मेथड मेथड एरिया, राइट। मेथड एरिया, अच्छा इस चीज में कंफ्यूज मत होना कि मेथड एरिया और क्लास एरिया अलग अलग है, ठीक है, ये दोनों सेम ही हैं, ये पॉइंट का ध्यान रखना। heap देन area नेक्स्ट and पार्ट हमारे stack पास area. आता है हीप एरिया, एंड देन नेक्स्ट पार्ट आता है डेटा स्टैक एरिया। Stack सो area. हमारे पास ये 3 इंपॉर्टेंट मेमोरी एरियाज हैं। इसके अलावा हमारे पास एक पीसी रजिस्टर एरिया भी आता है, और इसके अलावा हमारे पास एक नेटिव मेथड एरिया भी आता है। सो अभी के लिए हम लोग सिर्फ इन 3 पार्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो आता है दैट इज, Execution engine. एग्जीक्यूशन इंजन। बिल्कुल Execution. ठीक है, दैट इज एग्जीक्यूशन इंजन। तो होगा क्या यहाँ पर, जो हमारे पास बाइट कोड जनरेट हुआ है वो हमारा जेवीएम के अंदर लोड हो जाएगा। यस या नो? वो हमारा जेवीएम के अंदर लोड हो जाएगा। उसको लोड करने वाला कौन है, क्लास लोडर। Class दैट इज loader. क्लास लोडर। सो क्लास लोडर क्या काम करेगा, बाइट कोड को जेवीएम के अंदर लोड करना स्टार्ट कर देगा। बट ये चीज कब परफॉर्म होगा, ये चीज कब परफॉर्म होगा, जब मैं यहाँ पर बाइट कमांड प्रोवाइड करूंगा दैट इज जावा स्पेस क्लास क्लास नेम। फाइल Class name. नेम। सो जैसे ही मैं ये कमांड प्रोवाइड करूंगा हमारी जो डॉट क्लास फाइल होगी वो जेवीएम के अंदर लोड हो जाएगी। देन बाइट कोड वेरीफायर क्या काम करेगा, वो इस बाइट कोड को वेरीफाई करेगा कि प्रॉपर वैलिड जावा कंपाइलर से जनरेटेड है या नहीं है। अगर वैलिड है तो वो क्या काम करेगा, इस क्लास की डिटेल्स वो मेथड एरिया के अंदर स्टोर कर देगा। डेट मीन्स के क्लास का मेटा डाटा, क्लास का मेटा डाटा वो यहां पर स्टोर कर देगा। अच्छा, क्लास मेटा डाटा का क्या मतलब है,
क्लास की डेफिनेशन, क्लास की डेफिनेशंस, क्लास ओके। नेम, और उसमें कौन क्लास कौन सी नेम, मेथड्स आएंगी, उनमें कौन कौन से मतलब जितने भी क्लास का डिटेल्स है। पूरा स्ट्रक्चर क्लास का। राइट, क्लास का नेम क्या है, उसकी पेरेंट क्लास कौन सी है, देन उसके अंदर कितने मेथड्स हैं, कितने वेरिएबल्स हैं, वो सब कुछ क्लास के डिटेल्स वो हमारा मेथड एरिया के अंदर स्टोर हो जाएगा। ओके, देन स्टैटिक वेरिएबल्स भी हमारे यहीं पर ही स्टोर होते हैं। तो मैं यहां पर सिंपल लिख देता हूं, डेट इज स्टैटिक डेटा। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन हमारा क्या था कि हीप एरिया के अंदर कौन कौन सा डेटा स्टोर होता है, कौन कौन सा डेटा स्टोर होता है, डेट इज ऑब्जेक्ट्स। एरेज, देन इंस्टांस Instance, वेरिएबल्स इसके अंदर स्टोर होते हैं, एरेज इसके अंदर स्टोर string, होते हैं, स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स इसके अंदर स्टोर होते हैं। तो देखा जाए तो इसके अंदर काफी सारी चीजें हैं जो स्टोर होती हैं। एंड स्टैक एरिया की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या चीज स्टोर होगा, डेट इज करंट करंट रनिंग मेथड जो है वो स्टैक के अंदर स्टोर होता है। और उसके अलावा हमारे पास एक पार्ट और आ जाता है, डेट इज लोकल वेरिएबल्स। सो ये मैंने आप लोगों को बिल्कुल बेसिक पार्ट बताया है। बट यहाँ पर एक चीज का और ध्यान रखना कि स्टैक एरिया जो है वो पर थ्रेड एक ही रहने वाला है। मैं क्या बोल रहा हूं, वो पर थ्रेड हमारा सिर्फ एक ही रहेगा। सो एक थ्रेड के लिए हमारे पास एक स्टैक एरिया क्रिएट हो जाता है, दूसरे थ्रेड के लिए दूसरा स्टैक एरिया हमारे पास सेम टू सेम एक और स्टैक एरिया क्रिएट हो जाएगा अगर हमारे पास दूसरा थ्रेड है तो, अदरवाइज नहीं क्रिएट होगा। और इसके अंदर हमारे पास जितने भी मेथड्स हैं, जितने भी हमारे पास करंट रनिंग मेथड्स हैं, वो यहाँ पर जाकर स्टोर होते रहेंगे। सो ये यहाँ पर आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं। और यहाँ पर फिर ये इंटरेक्ट करता है किसके साथ, दैट इज एग्जीक्यूशन इंजन के साथ। एग्जीक्यूशन इंजन के अंदर हमारे पास जेट कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर ये दोनों मिलके काम करेंगे। ध्यान रखना, ये दोनों मिलके काम करेंगे और आपका कोड लाइन बाय लाइन जो है वो एग्जीक्यूट करते रहेंगे। मेरा एक क्वेश्चन और है, अमन अमन आप बताओ जरा, जावा जो है वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है या कंपाइल्ड लैंग्वेज है? ये भी इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, जावा जो है वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है या कंपाइल्ड लैंग्वेज है? हाँ जी, सर बोथ है सर। बिल्कुल सही है। जावा जो है वो बोथ लैंग्वेजेस में काउंट होगी, डेट इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में भी काउंट होगी एंड कंपाइल्ड लैंग्वेज के अंदर भी काउंट होगी। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सोर्स कोड पहले कंपाइल होता है और फिर जाकर वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। लाइन बाय लाइन हमारा वो कोड मशीन कोड में कन्वर्ट होगा और फिर जाकर एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहां पर जाकर हमारा कोड जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, दैट इज एन machine code. मशीन कोड। यस या नो? यस सर। सो यहाँ पर मैं एक पार्ट और लिख देता हूँ थोड़ा सा छोटा करके कि ये हमारे पास यहाँ पर हमारा मशीन कोड जनरेट हो जाएगा। सो बाइट कोड, देखो सोर्स कोड हमारे पास वो है जो प्रोग्रामर ने क्रिएट किया है, बाइट कोड वो है जो कंपाइलर ने जनरेट किया है, एंड मशीन कोड वो है जो एग्जीक्यूशन इंजन जनरेट करता है। सो ये हमारे पास कुछ बेसिक आर्किटेक्चर, और इसी आर्किटेक्चर में से काफी सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। ओके, ध्यान रखना है आप लोगों को। यस, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा सूरज। हाँ जी सूरज, आपसे है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंड डबल एंड ऑपरेटर, और इनको बोलते क्या है हम? सर आई डिडंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन सर। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एंड, सिंगल एंड जो होता है, यस या और सेकंड लॉजिकल एंड, बिटवाइज एंड लॉजिकल एंड में क्या डिफरेंस है? हाँ जी। सर double and is used to compare the two conditions in if condition we can use it, and single and is I think used in bit manipulation. ओके, इलेबोरेट करोगे थोड़ा सा इसको? When we have to compare the multiple conditions in a single if block, then we use double and symbol. ओके सिंगल एंड का ज्यादा मैंने एक्सप्लोर नहीं किया है सर। ओके, नो इशू। चलो शेख सानिया, आप एक्सप्लेन करोगे? ऑडिबल नहीं हो आप एक बार अनम्यूट करके दोबारा से बोलो। ओके, रिया आप बताओगे?
व्हाट इज हाँ सर, डिफरेंस बिटवीन बिटवाइज एंड लॉजिकल एंड ऑपरेटर्स? okay. If you take this end itself, single end and double end, so bitwise is always operators with the integer and bit level. But the logical operator end and like both ends, that values, I mean, evaluate both the conditions and returns the Boolean value. So, for example, if you take int a, for example, if you take int a, Okay. 10, it'll compares both. Hmm. But in case in the Boolean, sorry, logical operators, you have and not, or not. So it'll compares both the evaluates both the values in end operators. Okay. Anything So else? आशीष, थोड़ा सा और इलेबोरेट करना चाहोगे? Yes, sir. हाँ जी. The single AND operator, which is also called as bitwise operator, mainly it works on both integer and Boolean values, but the double AND, which is known as logical AND, works on only Boolean values. First Right. of all, yeah, and second of all, like if you compare the single AND, which is bitwise, so basically what it does is like if you are comparing to, like, for example, int a is equal to 10 and int b is equal to 20. So firstly, it will like if we convert the decimal into binary version of those, like a and b. So it will like do the comparison bit by bit. Like for example, one single and one is always one, and like that it will do. And so basically, it doesn't have the like both operands, like left hand side and right hand side. It will always compare, like irrespective of the decision of the left hand side, it will always go to the right hand side. But logical AND will, like if there is a false in the first hand, like left hand condition, it won't even go to the right hand side, like double AND. So that is the second major difference between those two. राइट. सो बिल्कुल ठीक आंसर है. देखो, सिंपल एंड मीन्स सिंगल एंड या फिर बिटवाइज एंड, ये तीनों सेम ही है. एंड लॉजिकल एंड, डिफरेंस क्या होता है वो चीज दोबारा फिर से मैं बता देता हूँ आप लोगों को. सिंगल एंड ऑपरेटर जो है वो दो चीजों के ऊपर परफॉर्म कर सकता है, दैट इज ऑन इंटीजर एज वेल एज ऑन बूलियन वैल्यू. Boolean values. राइट. जबकि अगर हम बात करें एंड ऑपरेटर की, डबल एंड ऑपरेटर दैट इज लॉजिकल एंड, वो सिर्फ और सिर्फ बूलियन ऑपरेटर्स को, बूलियन के ऊपर ही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है. ओके. सेकंड डिफरेंस जो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो सिंगल एंड ऑपरेटर होता है वो क्या करेगा, वो दोनों साइड को वो चेक करेगा. जबकि लॉजिकल एंड जो है वो अगर लेफ्ट साइड ऑपरेटर फॉल्स है तो राइट साइड की कंडीशन को चेक नहीं करेगा. जैसे फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ एक एग्जांपल भी आप लोगों को करके दिखाता हूँ. जैसे ये देखो, ये मेरे पास एक जावा क्लास है और यहाँ मैंने एक मेन मेथड क्रिएट कर दिया. सो यहाँ देखो, यहाँ मैं क्या काम करता हूँ, मैं दो यहाँ पर वेरिएबल्स ले लेता हूँ, डेट इज नंबर 1 जिसकी वैल्यू मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, डेट इज 5, एंड नंबर 2 जिसकी वैल्यू मैं यहाँ प्रोवाइड कर देता हूँ, डेट इज 3. नंबर 1 की वैल्यू 5 है, नंबर 2 की वैल्यू 3 है. सो यहाँ मैंने सिंबल प्रोवाइड कर दिया है, डेट इज नंबर 1 एंड नंबर 2. सो ये देखो, ये आउटपुट क्या प्रोवाइड करेगा, देख रहे हो, मैंने यहाँ पर सिंगल एंड ऑपरेटर का यूज किया है, बट ये यहाँ पर क्या काम करेगा, ये आउटपुट provide. प्रोवाइड कर देगा, डेट इज 1. One. क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल में यहाँ पर 5 को ये किस में कन्वर्ट करेगा, Binary. बाइनरी में Binary. कन्वर्ट करेगा. सो 5 की वैल्यू क्या रहेगी, 0101. 0101. एग्जैक्टली. इसकी वैल्यू क्या रहेगी, डेट इज 0101. एंड सेकंड वैल्यू क्या है हमारे पास, 3, तो 3 की वैल्यू क्या रहेगी, 0001. 0001. 0001. सो अगर हम इन दोनों को इवेल्युएट करते हैं तो किसमें आउटपुट प्रोवाइड कर देगा, डेट इज इंटीजर वैल्यू. एक्चुअल में इसकी आउटपुट जो आएगी वो क्या आएगी, डेट इज 0001 इसकी One. आउटपुट आएगी. यहाँ पर सर, ध्यान one रखना, ये 1 आएगा. सो इसकी आउटपुट एक्चुअल क्या आएगी, डेट इज 111, बट ये यहाँ पर 1 डिस्प्ले कर देगा. सो यहाँ पर सिंगल एंड ऑपरेटर जो है वो सिंपल इंटीजर के ऊपर भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है. जबकि अगर हम लोग बात करें ये यहाँ पर दो ऑपरेटर्स के ऊपर भी, दो बूलियन के ऊपर भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है. जैसे यहाँ मैंने कर दिया है, नंबर 1 इज ग्रेटर देन 10 एंड नंबर 2 इज ग्रेटर देन 10.
तो ये यहाँ पर प्रोवाइड कर देगा ट्रू, अदरवाइज ये यहाँ प्रोवाइड कर देगा फॉर एग्जाम्पल फॉल्स। तो मैं यहाँ पर कुछ इस टाइप से भी यूज कर सकता हूँ और आप चेक करो। सो ये देखो, ये यहाँ फॉल्स प्रोवाइड कर देगा, बट इसके इसमें क्या है, ये वाला कंडीशन भी चेक करेगा और ये वाली कंडीशन भी चेक करेगा। जबकि अगर मैं डबल एंड ऑपरेटर का यहाँ पर यूज कर देता हूँ, तो उस केस में अगर हमारे पास लेफ्ट साइड वाली कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो राइट साइड वाली कंडीशन चेक नहीं करेगा। यस या नो? यस सर। तो ये कुछ पॉइंट्स आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखने। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा अगेन रहेगा फ्रॉम संदीप। हाँ जी, आप बताओ जरा, व्हाट इज टाइप कास्टिंग? कोई एग्जांपल देकर मुझे एक्सप्लेन करना। Sir, typecasting is a process of converting one data type into another data type. It is a explicit type of process which is manually done by the programmer, not by the compiler. ओके Right? Like sir, if we declare double A is equal to no, long A is equal to 10, and then in other line we declare int B is equal to bracket में int A, then it Okay. convert that double into long into int. That is called the typecasting. ओके ठीक है। और मुझे एक चीज और बताओ, आपने यहाँ पर नेम सुना होगा डेट इज अपकास्टिंग एंड डाउनकास्टिंग, तो वो क्या होता है? वो टाइप Sir, कास्टिंग में होता है या नहीं काउंट होता है? no sir, downcasting is typecasting में होगा, but not upcasting, because in upcasting it is a implicit way which is done by the compiler, in which the smaller data type is converted into larger data type automatically. ओके, इस चीज को और क्या बोलते हैं? इसके लिए एक Sir, टर्म और होता है, क्या बोलते हैं उसको? अमन, आप थोड़ा सा इलेबोरेट करना चाहोगे? यस सर। हाँ जी। The typecasting in Java means converting one data type into another, and that's Okay. we need to change the type of a variable to perform certain operation. There are two typecasting. That is, one is widening and the second is the narrowing. Okay. And if we want to change the data type into that is int into a long or a double, that for example, if I write int a is equal to 10, and in next line double b is equal to a, so ओके so here converting into double and ओके, चलो ठीक है, नो इशू। मैं यहाँ आपको थोड़ा सा डीपली ये चीज भी एक्सप्लेन करता हूँ। सो यहाँ आ जाओ। देखो यहाँ पर टाइप कास्टिंग, टाइप कास्टिंग का एक्चुअल मीनिंग क्या रहेगा बताना जरा। बिल्कुल ठीक बोल रहा था आपने। Converting one data type into another data type is called या typecasting. एग्जैक्टली, कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा टाइप, उसे हम क्या बोल देंगे? दैट इज टाइप कास्टिंग, Typecasting. राइट? typecasting. अब मुझे ये चीज बताओ कि टाइप कास्टिंग कितने टाइप्स के होते हैं? Two दो types. टाइप के बताएगा? होते हैं, one is widening and narrowing, and even upcasting भी बोल सकते हैं, like Implicit and explicit implicit, explicit भी, yes, correct. ओके देखो, बेसिकली हमारे पास टू टाइप्स के टाइप कास्टिंग होते हैं, ठीक है? और दो अलग अलग डेटा टाइप्स के लिए होते हैं, ये भी पॉइंट का ध्यान रखना, ठीक है? हाँ, किस किस चीज के लिए? एक होता है हमारे पास दैट इज Primitive. प्रिमिटिव डेटा primitive टाइप्स, data type के और लिए, सेकंड हमारे पास होता है दैट इज object के नॉन लिए, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, या फिर आप बोल सकते हो, या फिर हम यहाँ इसको बोल देते हैं दैट इज ऑब्जेक्ट्स के लिए object. भी होता है, राइट? अच्छा, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट आ जाता है? Widening and narrowing, या एग्जैक्टली, इसके अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास? दैट इज widening, वाइडनिंग एंड सेकंड वन इज narrowing. narrowing. नैरोइंग। सो ये दो पार्ट हमारे पास आते हैं। वाइडनिंग का क्या मतलब रहेगा? जब smaller data type is Implicit converted into बनेगा. bigger data Implicit type. conversion होता है sir. बिल्कुल ठीक है, ये भी पॉइंट हम यहाँ पर बोल सकते हैं, दैट इज ये इम्प्लिसिट रहेगा। यस या नो? Yes. तो इस केस में हमारे पास क्या रहेगा? स्मॉलर डेटा टाइप जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Larger data data में. Larger data type. लार्जर डेटा टाइप में, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ देखो, फॉर एग्जांपल मैं That यहाँ कर int. देता हूँ दैट इज मेन ऐप 2। हाँ जी, बताओ जरा कोई एग्जांपल। Int to cap. int a equal to 10 ओके, जैसे फॉर एग्जांपल इंट ए इक्वल्स टू 10, देन and long l equal to a. या एग्जैक्टली। Hmm. सो मैं यहाँ And पर आप क्या काम कर रहा हूँ? ए को, जो इंटीजर टाइप का डेटा है, मैं उसको किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ? लॉन्ग के अंदर। Long.
मैं ये चीज इजीली कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि ए का साइज छोटा होता है, ए का साइज होता है 4 बाइट, जबकि लॉन्ग का साइज कितना होता है, डेट इज 8 बाइट्स। यस या नो? तो इजीली Yes. मैं यहाँ पर इजीली मैं यहाँ पर इंटीजर को, जो कि 4 बाइट्स की स्पेस मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, मैं उसको इजीली लॉन्ग के अंदर स्टोर कर सकता हूँ। बट अगर आप इसी को रिवर्स करने लग गए, फिर क्या रहेगा? आपको एक्सप्लिसिट कैस्ट करना डालना पड़ेगा। पड़ेगा, एक्सप्लिसिटली करना पड़ेगा। एग्जैक्टली अगर मैं यहाँ पर नंबर के अंदर एल को स्टोर करता हूं, तो ये डायरेक्टली यहाँ पर इसको इंटीजर के अंदर, मतलब लॉन्ग को ये डायरेक्टली इंटीजर के अंदर स्टोर नहीं कर पाएगा। हमें यहाँ पर इंट जो है वो चीज प्रोवाइड करना पड़ेगा, एंड दिस इज नॉन एज टाइप कास्टिंग। ये मुझे एक्सटर्नली प्रोवाइड करना पड़ा, तो इस वजह से हम इसे क्या बोलेंगे? Narrowing. डेट इज नैरोइंग या फिर Narrowing एक्सप्लिसिट। explicit. एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, जिसके अंदर हमारे पास लार्जर डेटा टाइप जो है वो स्मॉलर डेटा टाइप के अंदर स्टोर होता है। और ध्यान रखना, ये थोड़ा सा रिस्की होता है, डेटा लॉस हो सकता है, जबकि ये रिस्की नहीं होता। ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारे पास आता है डेट इज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, या फिर ऑब्जेक्ट्स आप बोलो, यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हो या फिर रेफरेंस टाइप बोल सकते हो, वो थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा। सो ये हमारे पास कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, बताओगे? Upcasting, Upcasting and Upcasting and downcasting. downcasting. बिल्कुल ठीक है, डेट इज Implicit. अपकास्टिंग एंड Yeah, डाउनकास्टिंग। Downcasting. सो अपकास्टिंग हम किसे बोलेंगे? implicit. Implicit को. इम्प्लिसिट को हम बोल सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। मैं यहाँ पर इम्प्लिसिट भी बोल देता हूँ, और मैं यहाँ पर इसको एक्सप्लिसिट भी बोल देता हूँ। सो ये दोनों हैं क्या? अब कास्टिंग हम यहाँ पर क्या चीज Actually, बोलेंगे? Converting this a is, subclass object to superclass is called upcasting. ओके, it is basically used in reference of the parent method class and object overriding. of the child class. ओके। देखो बिल्कुल ठीक है, आप इसको Overriding के case में प्रोग्राम होता के थ्रू एक्सप्लेन करना, प्रोग्राम के थ्रू आप लोग इसको एक्सप्लेन करना, थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ 2 क्लासेस हैं, फॉर एग्जाम्पल क्लास A3 के नेम से, और मेरे पास यहाँ पर एक और क्लास है डेट इज B3। और यहाँ ये जो क्लास है वो A3 क्लास को इनहेरिट करती है। यस या नो? सो Yes. मैं यहाँ पर क्या क्या चीज प्रोवाइड कर सकता हूँ? A3 का रेफरेंस, A3 का ऑब्जेक्ट, ओके, A3 का रेफरेंस हम किसके अंदर स्टोर करेंगे? A3 का ही ऑब्जेक्ट के अंदर, मतलब B3 के भी कर सकते हैं। हाँ। B3 के अंदर। एक्चुअल में ये जो पार्ट है, इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? डेट इज डायनेमिक डिस्पैच, मेथड ओवरराइडिंग। अपकास्टिंग। आप इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? डेट इज अपकास्टिंग। यस या नो? यस, ओके। और अगर मैं इसका रिवर्स करता हूं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर A3 का एक ऑब्जेक्ट है, A3 क्लास का मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, और मैं यहाँ पर B3 का मैं यहाँ पर एक रेफरेंस क्रिएट कर देता हूँ, और उसके अंदर मैं यहाँ पर obj2 मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो क्या ये चीज डायरेक्टली पॉसिबल है? No, sir. नहीं है। बट अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ डेट इज B3, तो ये चीज पॉसिबल है। यस या नो? जी, Yes, sir. यस या नो? टिल इट Yes. कैन तो थ्रो इस एक्सेप्शन। कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलेंगे? Downcast. डाउनकास्ट। डाउनकास्टिंग। सो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने के, अपकास्टिंग क्या होता है, डाउनकास्टिंग क्या होता है, देन वाइडनिंग क्या होता है, नैरोइंग क्या होता है। क्योंकि इंटरव्यू में कुछ भी पूछ सकते हैं, वाइडनिंग पूछ सकते हैं, व्हाट इज वाइडनिंग टाइप कास्टिंग, या फिर व्हाट इज इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। अगर इंटरव्यू में ये चीज पूछा जाता है व्हाट इज इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, तो आपको दोनों बताने, प्रिमिटिव डेटा टाइप के लिए भी बताना है और नॉन प्रिमिटिव डेटा Non-primitive. टाइप के लिए भी एक्सप्लेन करना है, ध्यान रखो। ओके। Sure. सो ये था हमारे पास डेट इज टाइप कास्टिंग का कॉन्सेप्ट। देन सूरज, आप मुझे एक चीज बताओ कि क्या हम इंटरफेस के अंदर वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं? Yes, sir. We can create the variables in the interface, and by default, the variable will be public, static, and the final. ओके। और क्या हम मेथड्स क्रिएट कर सकते हैं? Yes, sir. We can also create methods in the interface, and by default, the method will be public abstract, and the from Java 8 onwards, the methods are default as well, and Okay. private method is also introduced, and static method are also introduced.
public एब्स्ट्रैक्ट मेथड इंटरफेस के अंदर हमेशा एब्स्ट्रैक्ट मेथड आएंगे, और अगर आप वेरिएबल्स क्रिएट करते हो तो वो हमेशा पब्लिक स्टैटिक फाइनल वेरिएबल रहेगा, Yes, राइट? sir. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलो आशीष, हाँ जी, व्हाट इज द यूज ऑफ इंटरफेस, बताओ जरा। The primary use of interface is to create loose coupling in Java. Like when you are Okay. working on a larger code projects, like larger code base, yeah, interface is one of the most important like feature of Java, where we can like introduce a common method which is supposed to be implemented in its base classes, in its like implementing classes. Okay. So yeah, so interface is like, for example, if I give a practical example of it, for example, I'm creating an interface which is called banking, and it has an abstract, because like the method inside the interface is by default abstract. So I'm creating a method which is like payment. So, and it doesn't have any body, as we all know that. And so, and we are creating two separate classes, like called as net banking and UPI payment, which is again extending the interface called banking. So by its nature, like it has to override the payment method which we are like creating in the payment interface. So at the time of what it does is like it creates a loose coupling. We are not dependent completely on the interface method, so we can implement our own like method accordingly as per the requirement in the runtime. Like whenever user wants to pay through UPI, they can use the object of UPI, having the reference of payment from like payment interface, and they can create their objects of UPI. And if they want to pay it through net banking, they can create a object of net banking, but the reference of interface. In that way, it is secure also, because like creating objects through reference of interface is a very secured method. ओके, इसके अलावा कोई और यूज ऑफ इंटरफेस? संदीप, एनी Sir, अदर यूज ऑफ इंटरफेस? 100. Sir, one is to achieve the 100% abstraction, and also one is to achieve multiple inheritance. ओके, गुड। देखो, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। और इसके लिए स्पेशली मैंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा नोट्स यहाँ पर बनाए हुए हैं। जो यहाँ पर इन्होंने जो प्रोग्राम्स बताए थे, ये देखो इंटरफेसेस के अंदर यहाँ देख सकते हो आप लोग। ये देखो, बेसिकली इंटरफेस के थ्रू हम 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं, ये इसका प्रोग्राम है। सेकंड हमारे पास है कि इंटरफेस के अंदर हम कॉमन बिहेवियर प्रोवाइड करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक प्रिंट नेम का मेथड है जो इमेज के अंदर भी है, और वही सेम टाइप का मेथड हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट के अंदर भी है। तो यहां पर आप देख रहे हो सेम टाइप का मेथड है हमारे पास। तो मैं इस केस में क्या काम करूंगा, एक इंटरफेस क्रिएट कर दूंगा और उसके अंदर मैं एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड प्रोवाइड कर दूंगा। तो जितने भी ये दूसरी क्लासेस हैं वो सारे के सारे प्रिंटेबल इंटरफेस को इनहेरिट करेंगे, और प्रिंट मेथड को वो यहाँ पर ओवरराइड कर सकते हैं। सो ये भी हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट, इसके बाद हमारे पास एक यूज आता है कि हम मल्टीपल इनहेरिटेंस इंटरफेसेस के थ्रू अचीव कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज यूज टू अचीव लूज कपलिंग। ये तो सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट यूज है इंटरफेस का, ध्यान रखना। इस केस में क्या रहेगा, ये देखो, हम यहाँ पर बहुत सारे पेमेंट मेथड्स क्रिएट कर रहे हैं। ये देखो, यूपीआई पेमेंट मेथड हम क्रिएट कर रहे हैं, नेट बैंकिंग पेमेंट मेथड हम यूज कर रहे हैं। और अब यूजर के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि वो कौन सा मेथड यहाँ पर चूज करता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर यूजर से पूछ लिया है कि आपको यूपीआई से पेमेंट करनी है या फिर आपको नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करनी है। वो यहाँ पर 1 या 2 चूज करेगा। अगर वो 1 चूज करता है तो मैं क्या काम करूंगा, यूपीआई पेमेंट का मैं यहाँ पर रेफरेंस प्रोवाइड कर दूंगा। ये देखो, इसका मैं रेफरेंस यहाँ पर क्रिएट कर दूंगा। वो रेफरेंस हमारा किसके अंदर जाएगा, दैट इज चेकआउट डॉट पेमेंट। तो पेमेंट चेकआउट के नेम से भी मैंने एक क्लास क्रिएट की हुई है जिसके अंदर पेमेंट नेम का मेथड है, जो इंटरफेस का रेफरेंस यहां पर ले रहा है। ये देखो, और उसके अंदर एक पे नेम का मेथड है। पे मेथड जो है वो यहां पर कॉल हो जाएगा। और एक्चुअल में ये जो पे मेथड है, ये एक्चुअल में इसके लिए जो इम्प्लीमेंटेड मेथड है
जैसे ये वाला पे मेथड है या फिर ये वाला पे मेथड है, वो इन दोनों में से कोई भी एक पे मेथड को कॉल कर लेगा। सो इस टाइप से हम लोग यहाँ पर लूज कपलिंग अचीव करते हैं। ये वाला प्रोग्राम हो सकता है आप लोगों को फर्स्ट टाइम पर ना समझ में आए, बार बार एक बार आप इस प्रोग्राम को ट्राई करके देखना, धीरे धीरे आप लोगों को फिर ये इंटरनली समझ में आएगा कैसे लूज कपलिंग यहाँ पर अचीव हो रही है। बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। और उसके अलावा फिर ये फ्रेमवर्क्स के अंदर, एपीआईज के अंदर और डिजाइन पैटर्न्स के अंदर भी ये काफी ज्यादा यूज होता है। तो ये चीजें आप लोग जब थोड़ा एडवांस लेवल पर चले जाओगे तब आप लोगों को ये चीजें भी समझ में आएंगी। ओके, सो इंटरफेसेस का कॉन्सेप्ट आपको बहुत डीपली पढ़ना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। नूर मोहम्मद खान, हाँ जी, आप बताओगे जरा, क्या हम कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट कर सकते हैं? यस सर। क्या हम यस कंस्ट्रक्टर को सर। इनहेरिट कर सकते हैं? ओके, क्या हम कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड कर सकते हैं? ओवरराइड यस सर कर सकते हैं। ओके ओके, और क्या हम कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट क्रिएट कर सकते हैं? नो सर। ओके, आपने तीनों के लिए उल्टा बोला है। हाँ जी, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। सेकंड पार्ट, हम कभी भी कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट नहीं कर सकते एंड कंस्ट्रक्टर को हम लोग ओवरराइड भी नहीं कर सकते। यस या नो? ओके, अच्छा, कंस्ट्रक्टर को ओके हम सर। प्राइवेट कब क्रिएट करते हैं? संदीप, Yes, sir. प्राइवेट Sir, कंस्ट्रक्टर कब क्रिएट करना चाहिए, बताओ। sir, when we want that the other class are not able to create the instance of that class, only ओके the गुड, same method can create. बिल्कुल ठीक है। हम यहाँ पर कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट तभी बनाते हैं जब मैं चाहता हूं कि उस कंस्ट्रक्टर का, उस क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट ना कर सके किसी दूसरी क्लास के अंदर। क्लियर है चीज? अच्छा, इसके थ्रू हम कौन सा डिजाइन पैटर्न इंप्लीमेंट कर पाते हैं? Singleton, हाँ जी, सिंगलटन, पक्का? I हाँ जी, think, sir. आशीष, Yes, sir, correct. Singleton करेक्ट design है? pattern is one of the most inspired cases. बिल्कुल ठीक आंसर दे रहे हो। ठीक है संदीप, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट भी हमें रहना है। ओके, बिल्कुल सही आंसर दे रहे थे आप। ओके, Thank you, sir. सो ध्यान रखना, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बेसिकली हम सिंगलटन डिजाइन पैटर्न के अंदर यूज करते हैं। रिया, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पोजो क्लास एंड जावा बीन क्लास? Sir, I'm not very confident about that answer. ओके Okay. ओके, कोई इशू नहीं है। सूरज, Yes, sir. या व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पोजो क्लास एंड जावा बीन क्लास? I think Pojo class is the plain old Java object, ओके and Java Bean class is mostly used in the frameworks, and Java Bean class must be implement the serializer interface, and there is no such type of requirements while using the Pojo class. ओके, एनी अदर डिफरेंस? To Yeah. define the setters and getters in the Pojo class is not compulsory, but in Java Bean class it must be defined. ओके गुड, ठीक है। अमन, और कोई डिफरेंस एक बार प्रॉपरली बताओगे? Yes, sir. हाँ जी, Sir, Pojo just means a plain old Java object class. Okay. That it is a normal Java class that we use to hold data. And for Okay. example, if I make a class student with variable name that is no name, roll number, and marks, and then add getter setter method, that's a Pojo. There is no strict rules. And Java Beans is also basically Pojo, but it follows some rules. And in a Java Beans class, that all be variables must declare in must be private, and provide public getter setter, and it should have a default no argument constructor, so it can also be serialized, so state can be saved. ओके गुड, या गुड। ये मैं एक बार आपको छोटा सा प्रोग्रामेटिकली एक्सप्लेन करूं। देखो, आप लोग अगर इस टाइप का कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप यहाँ पर प्रोग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक मेन मेथड क्रिएट कर दिया। सो मेरे पास यहाँ पर एक क्लास है, स्टूडेंट नेम की। इसके अंदर मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया, फॉर एग्जांपल इंट रोल नंबर एंड स्ट्रिंग नेम।
और जस्ट मैं यहाँ पर एक मेथड क्रिएट कर रहा हूँ, डेट इज डिस्प्ले नेम का मेथड है, जिसके अंदर मैं यहाँ पर रोल नंबर जिसके अंदर मैं यहाँ पर रोल नंबर प्लस एंड मैं नेम यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ। सो ये मेरे पास क्या है, दिस इज सिंपल पोजो क्लास। इसके अंदर कोई बाउंडेशन नहीं है, आपके वेरिएबल्स किस टाइप के होने चाहिए, मींस प्रॉपर्टीज आपकी किस टाइप की होनी चाहिए, यहाँ पर गेटर सेटर मेथड्स आने चाहिए या नहीं आने चाहिए, कंस्ट्रक्टर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सीरियलाइजेबल इंटरफेस को इनहेरिट कर रहा है या नहीं कर रहा, कोई बाउंडेशन नहीं है। दिस इज नॉन एज पोजो क्लास, जिसके अंदर कोई स्ट्रिक्ट रूल यहाँ पर नहीं है, इसके अंदर कोई स्ट्रिक्ट रूल यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। जबकि अगर हम बात करें जावा बीन क्लास की, तो जावा बीन क्लास के लिए फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक क्लास क्रिएट कर दी है एम्प्लॉय के नेम से। अब बताओ जरा मुझे क्या क्या कंडीशन आनी चाहिए। मेरे All पास the यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी है और मेरे पास यहाँ पर एम्प्लॉय का नेम भी है, तो क्या क्या कंडीशंस आएंगी। both should be Variable private. should be Private. private. प्राइवेट होनी बिल्कुल चाहिए ठीक है, value। फर्स्ट कंडीशन के दोनों हमारे पास प्राइवेट होने चाहिए। सेकंड, Public getter setter Public होना getter We चाहिए. should have public पब्लिक getters and गेटर setters. सेटर मेथड्स होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पर पब्लिक गेटर सेटर मेथड्स क्रिएट हो चुके हैं। देन थर्ड पॉइंट, The No class argument should constructor. implement Before no argument serializable constructor। interface. Sir, no argument constructor. बिल्कुल ठीक है। एक और, डेट इज नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर होना चाहिए। नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर हमारा किस टाइप का रहेगा, पब्लिक रहेगा या नहीं। Yes, sir. पब्लिक नो Public. Yes, आर्ग्यूमेंट yes. कंस्ट्रक्टर Public होना चाहिए। must ओके, be public. एंड लास्ट कंडीशन के ये बेसिकली सीरियलाइजेबल इंटरफेस को भी इंप्लीमेंट करना चाहिए, तो जाकर ये प्रॉपर हमारे पास जावा बीन क्लास क्रिएट होगी। और जावा बीन क्लास के थ्रू हम कौन सा पार्ट अचीव कर सकते हैं, या फिर क्या चीज हमें अचीव कर सकते हैं, बताओगे। Serialization. सीरियलाइजेशन, ओके Sending objects over the network. ओके, बट मुझे एक चीज बताओ, जावा बीन क्लास बेसिकली हम किस चीज के लिए यूज करते हैं। सीरियलाइजेबल का कॉन्सेप्ट छोड़ दो अभी उसको, उसके अलावा तो बेसिकली तो डेटा हाइडिंग के लिए करते हैं और एनकैप्सुलेशन के लिए use होती है। इनकैप्सुलेशन के लिए। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ये जो पार्ट है ये क्या है, दिस इज द पार्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन। दैट मीन्स के जावा बीन क्लास इज द एग्जांपल ऑफ इनकैप्सुलेशन। क्लियर है पॉइंट सबको। सो मेरा यहाँ पर एक और क्वेश्चन है आप लोगों से, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन, कौन बताएगा। जी मैं ट्राई कर सकती हूँ. या क्वेश्चन एक बार पूछ सकते हैं सर. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन। Okay, abstraction is a hiding the data, like hiding the implementation and showing the user important feature, I mean required feature. But Okay. encapsulation is binding the data, like in a data and variable in single entity. But it is giving a direct it is restricting the direct contact of the data. So that is the Okay. main difference between abstraction and encapsulation. यहाँ पर अगर कुछ भी इस टाइप से आता है तो आप दो चीजें यहाँ पर बोल सकते हो, ठीक है, दो तीन पॉइंट्स। फर्स्ट, सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन बतानी है, ठीक है। सेकंड पार्ट के आप उसको कैसे अचीव कर सकते हो, ओके। एंड थर्ड पार्ट पर आप उसका एग्जाम्पल या फिर प्रोग्राम एक्सप्लेन करोगे। सो आशीष, मुझे बताओगे जरा, एलेबोरेट करोगे आंसर। Yes, sir. हाँ So जी। encapsulation is basically the core definition of encapsulation is data hiding, where we are hiding the data by using private keywords in the Okay. in all the variables and using public getters and setters in order to access them. और एब्स्ट्रैक्शन में हम लोग सर मेथड हाइड मतलब बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन हाइड करते हैं, बस उसका इंपॉर्टेंट फीचर शो करते हैं। So that is the Okay. core difference. Then abstraction can be achieved via abstract class and so I'm Elements. forgetting interface. Sorry, yeah, I was forgetting the interface. और abstract और encapsulation हम लोग अचीव करते हैं वही, जैसा मैंने पहले बोला, प्राइवेट कीवर्ड यूज करके। अगर डेटा मेंबर्स हैं तो उसमें प्राइवेट कीवर्ड यूज करते हैं और पब्लिक गेटर्स एंड सेटर यूज करते हैं। So this is the way we can achieve both. And also encapsulation is something where we are using when a user is giving
हैविंग कंट्रोल ऑन द एप्लीकेशन, लाइक बेसिकली अगर एक क्लास है जैसे कि हम बना रहे हैं लॉगिन एप्लीकेशन के लिए, तो हम मतलब जिसका भी मतलब यूजर का डिटेल्स जो कि मतलब पासवर्ड हो गया, कितना बैंक बैलेंस है, कौन सा आईडी है, ये सब सिक्योर करने के लिए हम इनकैप्सुलेशन का यूज करते हैं। एब्स्ट्रैक्शन हम यूज करते हैं मतलब इंपॉर्टेंट मेथड्स जो है उसका हम लोग एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन हाइड करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए आप इंजन, एक कार है, उसमें एक इंजन भी है, ब्रेक्स भी हैं, बहुत सारे मतलब फीचर्स होते हैं, तो हम लोग बस यूजर्स को बताते हैं कि ये सब फीचर्स है कार के, लेकिन उसकी एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन हाइड करके रखते हैं। ओके गुड। देखो ये पार्ट मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले तो हमारे पास आ जाता है दैट इज एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट हमारे पास सबसे पहले तो डेफिनेशन आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। और यहाँ मेरे पास आ जाएगा दैट इज इनकैप्सुलेशन, राइट। फर्स्ट एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन के लिए हम क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्शन इज शोइंग इंपॉर्टेंट फीचर, हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन। Hiding the बिल्कुल ठीक है, implementation. ठीक है। शोइंग Important important features and hiding देयर Implementation. the implementation। जबकि इनकैप्सुलेशन क्या होता है? डेटा हाइडिंग, hiding the data. बाइंडिंग ऑफ मेथड्स एंड डेटा मेंबर्स। बिल्कुल ठीक है, आप यहाँ पर ये चीज बोल लो दैट इज बाइंडिंग द डेटा एंड डेटा हम किसको बोल रहे हैं? डेटा प्रॉपर्टीज को या फिर वेरिएबल्स को, एंड मेथड्स इनटू सिंगल यूनिट। सो ये हमारे पास सिंपल डेफिनेशंस हो जाएंगी। देन सेकंड पार्ट हमारे पास आ जाता है दैट इज हाउ टू अचीव। अगर हम यहाँ पर बात करें कि एब्स्ट्रैक्शन हम कैसे अचीव कर सकते हैं, टू वेज से। कैसे? Abstract class and Classes. बिल्कुल interface. ठीक है, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस। Interface. जबकि इनकैप्सुलेशन हम कैसे अचीव करते हैं? Private variables. फिर वही जावा बीन Data क्लास set. यूज करके भी कर सकते हैं, जावा वो बीन जो क्लास यूज कर सकते, वो जो या क्लास बिल्कुल ठीक है। देखो यहाँ पर आप बिल्कुल बोल सकते हो, या तो आप ये चीज बोल दो कि प्राइवेट प्राइवेट वेरिएबल्स एंड पब्लिक पब्लिक गेटर्स एंड public गेटर Getter setter. सेटर method. मेथड्स आप यहाँ पर बोल सकते हो, या फिर आप यहाँ पर जावा जावा बीन क्लासेस भी बोल सकते हो कि जावा बीन क्लासेस के थ्रू हम इनकैप्सुलेशन को अचीव कर सकते हैं। देन यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा? दैट इज प्रोग्राम आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। प्रोग्राम इसका सिंपल ही आ जाएगा। सो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर मेन ऐप 5 क्लास में क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ मेरे पास क्या रहेगा? एक एक मेरे पास क्लास है फॉर एग्जांपल शेप के नेम से। ओके, कोई भी क्लास मैंने क्रिएट कर दी है, बट ये मेरे पास क्लास क्या रहेगी? दैट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और इसके अंदर मैं एक मेथड क्रिएट कर सकता हूं दैट इज ड्रॉ शेप के नेम से। बट इसकी कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं बनाना चाहता मैं, तो मैं इसको क्या काम कर दूंगा? एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट कर दूंगा। और अगर हम बात करें यहाँ पर ट्रायंगल की, सो क्लास ट्रायंगल ये क्या काम करेगा? एक्सटेंड्स करेगा शेप को, और फिर मैं यहाँ पर मेथड ओवरराइड कर दूंगा, जिसके अंदर मैं यहाँ पर इसकी इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर देता हूं कि ये बेसिकली ट्रायंगल शेप क्रिएट कर रहा है। तो ये जो पार्ट हमारे पास यहाँ पर अचीव हुआ है, दिस इज नॉन एज एब्स्ट्रैक्शन। मींस मैं यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन हाइड कर रहा हूं, सिर्फ इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स ही मैं यहाँ पर डिस्प्ले करूंगा। दिस इज नॉन एज एब्स्ट्रैक्शन, ओके। या फिर आप यहाँ पर इसको इंटरफेसेस के थ्रू भी अचीव कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ पर क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट की है, उसकी जगह पर मैं यहाँ पर इंटरफेस भी क्रिएट कर सकता हूँ। बस हम यहाँ पर उसकी जगह पर क्या चीज प्रोवाइड करेंगे? इंप्लीमेंट्स। सेकंड थिंग के मुझे यहाँ पर पब्लिक कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे मेथड्स किस टाइप के रहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक मेथड रहेंगे। सो मुझे यहाँ पर भी पब्लिक कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। सो ये टू वेज थे जिसके थ्रू हम यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं। और इनकैप्सुलेशन का प्रोग्राम जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि इस टाइप से हम इनकैप्सुलेशन अचीव कर सकते हैं। यस या नो? यस। ओके, Yes, ठीक sir. है। देन आ जाओ लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है मेरा अमन से। ओके अमन, व्हाट इज डायमंड केस प्रॉब्लम? Diamond case. संदीप Yes, sir. जी।
So, sir, diamond case problem is a problem or ambiguity which is arises due to the concept of multiple inheritance in Java. ओके Like if the child class extend two parent class and both the parent class having the same method with the same method name, then the JVM will confuse to call the which method to be called. So due to this, a diamond problem is arises. which method to be called, ओके, और which method it has to override, क्या चीज बोलेंगे हम, कौन सा टर्म ज्यादा बेटर रहेगा? सर ओवरराइड वाला ज्यादा बेटर होगा. एग्जैक्टली ठीक है, पॉइंट समझो यहाँ पर। मेरे पास यहाँ पर है, ये रहा। तो वो डायमंड केस प्रॉब्लम क्या है एक्चुअल में, मेरे पास एक क्लास है ए, देन यहाँ पर मेरे पास है एक क्लास बी है, और एक और क्लास है मेरे पास दैट इज सी, और इसके अलावा मेरे पास एक क्लास और प्रेजेंट है दैट इज डी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बी जो है वो ए क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है, देन ए की प्रॉपर्टीज हमारी सी के अंदर भी जा रही है, एंड बी की प्रॉपर्टीज हमारी डी के अंदर जाएगी, सी की प्रॉपर्टीज भी हमारी डी के अंदर जाएगी। अब ये प्रॉब्लम क्यों है वो चीज समझो। मान लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पर एक शो नेम का मेथड है, मेरे पास इसके अंदर शो नेम का मेथड है, इसके अंदर भी मेरे पास शो नेम का मेथड है, और इसके अलावा हमारे पास इसके अंदर भी शो नेम का मेथड है। यहां तक तो ठीक है, काम चल जाएगा, बट जब हमारे पास यहां पर शो मेथड क्रिएट होगा, मान लेते हैं कि हमारे पास यहां पर डायमंड केस प्रॉब्लम नहीं है, तो आप यहां पर क्या चीज लिखोगे, दैट इज क्लास डी एक्सटेंड्स बी कॉमा सी, यस या नो? यस ओके सर. आप यहां पर ये चीज लिखोगे, और जैसे ही आप यहां पर इसके अंदर शो मेथड क्रिएट करोगे, तो ये जो शो मेथड है ये क्या रहेगा, ये यहां पर ओवरराइड होगा। ऑब्वियसली ये यहां पर क्या हो जाएगा, शो मेथड जो है वो ओवरराइड होगा। बट ये जो ओवरराइड हो रहा है मेथड, वो बी क्लास के लिए ओवरराइड हो रहा है या सी क्लास के लिए, क्योंकि दोनों के अंदर ही शो मेथड है। तो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं बी क्लास के मेथड के लिए इसको ओवरराइड करूं या फिर सी क्लास के लिए इसको ओवरराइड करूं। सो वो यहां पर कंफ्यूज हो जाता है, और इस वजह से डायमंड केस प्रॉब्लम अकर होती है जावा के अंदर। और इसका सॉल्यूशन क्या है, डायमंड केस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या रहेगा? इंटरफेस इम्प्लीमेंट्स कर सकते हैं। हम यहाँ पर इंटरफेसेस का यूज करेंगे, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम फेस हो रही है ये हमारी मल्टीपल इनहेरिटेंस या फिर हाइब्रिड इनहेरिटेंस के केस में प्रॉब्लम अकर होगी। सो उस केस में हम क्या काम करेंगे, इंटरफेसेस क्रिएट करेंगे। क्लियर है चीज सबको? सो ये हमारे पास आंसर था, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है कि एक तो कभी भी आप लोग आंसर प्रोवाइड करते हो इंटरव्यूज के अंदर, तो सबसे पहले तो आप सिंपल उसके डेफिनेशन बता दिया करो। सेकंड पार्ट पर आप उसका कोई रियल वर्ल्ड एग्जांपल बता सकते हो। रियल वर्ल्ड एग्जांपल अगर माइंड में नहीं आ रहा है तो कोई प्रोजेक्ट बेस्ड एग्जांपल आप बता सकते हो, ओके। और उसके बाद सिंपल प्रोग्राम लिखकर एक्सप्लेन करो, ठीक है। पेन नोटबुक मांगो इंटरव्यूअर से और वहां पर जाकर आप एक्सप्लेन करो प्रॉपर, ओके।